Hello everyone, welcome to Simple Classes, the most structured online platform for learning. That means no confusion and no nonsense whatsoever. आपके वक्त की हमें कदर है, that is why we never take your time for granted. So today's session is on ratio, proportion and variation topic, and this is the second lecture. You see basics module written here, which means that this lecture is part of the basics module. Basics module जो होगा हमारे चाहे कोई भी courses हो उसका basic module will always deal with the fundamentals and the concepts in detail. Alright, now in the previous lecture we covered ratios in detail. हमने तमाम फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो भी रेशियो से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए along with tons and tons of example. In case आपने first lecture miss कर दिया है for whatever reason, I strongly recommend that you please first go and complete that. Alright, now before starting I would like to run you all through the contents of today's session. So today in this video we'll be covering proportion, variation, different types of variation like direct, inverse and joint variations. Uske baad we'll take up the examples and solve them so that you are thorough with the concepts. Alright, so please make sure that you watch the video till the end and don't skip the video so that you don't miss out on anything. Now next, one humble request before I start this video is that I need your 100% attention. See, a lot of effort goes into making this video. उसका फायदा आपको तभी होगा when I have your attention. Alright, so on this note, let's start today's class. अब रेशियोज हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. यहाँ पे हम कवर करेंगे प्रोपोर्शन पहले, उसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन को. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स फॉर प्रोपोर्शन, लेट्स डील विद द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. अब डेफिनेशन क्या कह रही है? When two ratios are equal, then the four quantities involved in the two ratios are said to be proportional. अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें कीवर्ड्स पे. दो रेशियोज का होना बहुत जरूरी है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? दे हैव टू बी इक्वल. अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो प्रोपोर्शन की हम बात कर ही नहीं सकते. ठीक है, सो व्हेन टू रेशियोज आर देयर एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन द फोर क्वांटिटीज, व्हिच आर दोस फोर क्वांटिटीज कंटेन्ड इन दीज टू रेशियोज. राइट, अब जैसे ये दो रेशियोज हैं a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो कौन सी हमारे पास चार क्वांटिटीज होंगी? a, b और दूसरे रेशियो से c और d. तो अगर ये दो रेशियोज इक्वल हैं एक दूसरे के, देन इट कैन बी सेड दैट a, b, c and d आर प्रोपोर्शनल. So this is what the definition tells us. Please read it again. Understanding this is critical. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं इसके बारे में. हम यहाँ पे दो रस्सियों को लेके चलेंगे. पहली रोप है R1 और दूसरी है R2. Let the lengths be L1 and the weight be W1 for the first rope. Similarly for the second rope, L2 उसकी लेंथ होगी और weight उसका W2 होगा. क्लियर? L1 को मान लेते हैं इज 21 मीटर. तो पहली रोप हमारी हो गई 20 मीटर लंबी, दूसरी रोप मान लेते हैं हम 40 मीटर लंबी है, और दोनों के वेट्स अज्यूम कर लेते हैं 1 और 2 किलो. ठीक है, अब इस अजम्पशन बेसिस पे हम एक रेशियो निकालेंगे दोनों रोप्स के लिए, विच इज लेंथ अपॉन वेट. सो पहले हम R1 रोप के लिए निकालेंगे लेंथ अपॉन वेट. क्या होगा? L1 अपॉन W1 विच विल बी इक्वल टू 20 बाय 1 which is equal to 20. क्या यहाँ पे कोई यूनिट आएगा? नहीं, because we already know that ratios are abstract. उनका कोई यूनिट नहीं होता. इंडिविजुअल क्वांटिटीज का यूनिट जरूर होता है, जैसे कि यहाँ पे मीटर्स है, केजी है, लेकिन जब आप रेशियो निकालते हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा. क्लियर? नाउ सिमिलरली वील फाइंड आउट दिस रेशियो फॉर द सेकेंड रोप. सो L2 अपॉन W2 will give you 40 upon 2 which is again equals to 20. So we have find out कि L1 is to W1 is equal to L2 is to W2. Now as per the definition which we have here, अगर ये true है, अगर ये दो ratios बराबर हैं एक दूसरे से, then we can say that these quantities of the ratios which is L1, W1, L2 and W2, they are in proportion. This is what the definition is telling us. कि अगर दो ratios equal हैं तो जो भी उनके terms हैं, जो भी उनकी quantities हैं, they are in proportion to each other. Clear? Now let's look at the next point. Next point talks about the representation. So इस तरीके से हम proportion में जब चार terms होते हैं उनको इस तरीके से हम लिखते हैं. So when a by b is equal to c by d, then we say that a is to b is as, ये जो साइन है ये आपका proportion का साइन है. इसको हम पढ़ते कहते हैं is as c is to d. So when we say a by b is equal to c by d, we can say that a is to b is as
C is to D. So this is how you read a proportion. Now let's understand meaning of two terms. पहला term है extremes. तो जब A by B is equal to C by D होता है, then we can say that A is to B is as C is to D. Now when we say that, it means that A, B, C and D, they are all in proportion. Clear? यहाँ तक बात समझ में आ गई? When we say that, then इस proportion के अंदर में A और D, ये जो पहला और ये जो चौथा टर्म है देख रहे हैं आप, these are known as extremes. लर्निंग दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन्ड होता है. अगर आपको मतलब पता नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करोगे? सो ए एंड डी, व्हेनेवर ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी और ए बी सी डी आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, देन ए एंड डी, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, आर नोन एज एक्सट्रीम्स. सिमिलरली वी हैव अनदर टर्म विच आर नोन एज मीन्स. मीन्स कौन से होते हैं? बी एंड सी. So B here and C, the second and the third term, are known as means. So when A is to B is same as C is to D, then we know कि जो पहला term है that is an extreme, last term is an extreme, and these two term here are known as means. और इनके ऊपर एक बहुत ही important property है जो हमें पता होनी चाहिए, which is product of the means is equal to product of extremes. Now this is extremely important thing which you should definitely know and remember कि जो product होता है means का और extremes का वो बराबर होता है, which means BC is equal to ED and this is always true, right? Using this property we solve a lot of questions as well. Now we look at the properties जो proportion से associated हैं. Now guys, this is very very important, please pay attention. What are these properties? First of all we have invertendo, then alternando, then componendo, dividendo और इन दोनों का combination which is known as componendo and dividendo. अब ये सारी पांचों की पांचों properties बहुत important है और question को solve करने में आपको काफ़ी help करती हैं. ये समझ में नहीं आएगा तो question solve नहीं कर पाओगे. ठीक है? अब एक एक करके सारी properties देखते हैं. पहली है invertendo. Invertendo, what does it tell us? If A and B is equal to C by D. अब ये जो condition है ये essential condition है for proportions. तो अगर ये कंडीशन होल्ड ट्रू नहीं करेगी तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू नहीं करेंगे. तो इसका होना सब कंडीशंस में जरूरी है. सारी प्रॉपर्टीज तभी एप्लीकेबल होंगी इफ देयर आर टू रेशियोज. क्या एसेंशियल कंडीशंस थी? कि दो रेशियोज होंगे और वो रेशियोज आपस में बराबर होंगे. ठीक है? जब ये होगा तभी ये हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स अस, इन्वर्टेंडो टेल्स अस, अगर a by b इज इक्वल टू c by d तो जो उनको उल्टा करके रेशियो आता है यानी कि b by a इज इक्वल टू d by c, ये हमेशा ट्रू होगा. दिस इज ऑलवेज ट्रू. इफ देयर आर टू रेशियोज विच आर इक्वल तो उनके इनवर्स रेशियोज भी इक्वल होंगे. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल में एक रेशियो लेंगे. फर्स्ट वी विल एस्टैब्लिश द एसेंशियल कंडीशन एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विच वी विल अज्यूम टू चेक वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. This will be continue doing for all these properties. ठीक है? अब देखते हैं. अब दो दोस्त हैं, मान लो अमित और बॉबी. ठीक है? अब इनकी जो इनकम है, जो कमाई है, वो हम आई से डोनेट करेंगे और जो इनके खर्चे हैं वो हम ई से डोनेट करेंगे. क्लियर है? अब अमित की इनकम हम मान लेते हैं आई ए और उसका जो खर्चा है वो हम मान लेते हैं ई ए. लेट द इनकम ऑफ अमित बी ₹10,000. वी आर ऑल अज्यूमिंग दिस वैल्यू हियर and his expenditure be ₹5,000. Clear? Similarly for Bobby, बॉबी की इनकम मान लेते हैं हम 50,000 रुपये. अमित से ज़्यादा पैसे कमाता है और उसका खर्चा भी जाहिर सी बात है फिर अमित से ज़्यादा होगा और उसका एक्सपेंडिचर हम मान के चलते हैं 25,000. Alright, now we have these four values here. Now we'll find the ratio of income is to expenditure for both Amit and Bobby and then try to compare them. तो सबसे पहले अमित के लिए निकालते हैं. इनकम इज टू एक्सपेंडिचर कितना होगा? आई ए अपॉन ई ए. राइट? ये कितना हो जाएगा? 10,000 बटा 5,000. ये निकल के आएगा आपका 2. सो इनकम ऑफ अमित इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ अमित इज इक्वल टू 2. नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर बॉबी. आई बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी, ये किसके बराबर होगा? 50,000 अपॉन 25,000. ये भी हमने देखा 2 के बराबर निकल के आया. सो वी कैन से कि द रेशियो ऑफ इनकम्स इज टू एक्सपेंडिचर फॉर अमित एंड फॉर बॉबी इज इक्वल टू ईच अदर.
तो ये दोनों रेशियो बराबर है। तो इससे हमारी जो इसेंशियल कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है फॉर प्रोपोर्शन टू बी पॉसिबल, वो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब अगर ऐसा है देन नाउ लेट्स चेक कि इन्वर्टेंडो का जो ये प्रॉपर्टी है, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे वैल्यूज कि ये सही निकलती है कि नहीं। अब इसके हिसाब से अगर ये चीज़ हमारे पास है IA upon EA, which is the Amit's income upon Amit's expenditure, is equal to IB upon EB, which is Bobby's income and expenditure, then as per Invertendo, what will we have? Inka reverse should always be equal, right? So EA upon IA, expenditure of Amit upon income of Amit, will be equal to expenditure of Bobby upon income of Bobby. अब देखते हैं सही है कि नहीं। ई अपॉन आई ए की वैल्यू कितनी होगी? ई कितना था हमारा 5000, सो 5000 अपॉन इनकम कितनी थी अमित की 10,000, तो 10,000 ये कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर। अब सिमिलरली हम बॉबी के लिए निकालेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी अपॉन इनकम ऑफ बॉबी, ये कितनी निकल के आएगी? एक्सपेंडिचर कितना था इसका 25,000 और इनकम कितनी थी 50,000, तो के से के कैंसिल, के इज हेयर फॉर एक्सप्रेसिंग 1000, ठीक है। और 25 से ये सिंप्लीफाई होगा, दिस इज ऑल्सो 1/2। सो हमने देखा कि अगर दो रेशियोज ई ए अपॉन आई ए is equal to EB upon IB, they are equal to each other, then the inverse of these two ratios individually will always be equal to each other. So this is invertendo. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट ये वैल्यूज यूज करके आप ये सारे प्रॉपर्टीज में एक बार आई सजेस्ट कि ट्राई एंड सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट वेदर दीज प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू और नॉट। All right, so the next property, let's see what it is. The next property is alternando. Yani if A by B is equal to C by D, which is the essential condition for a proportion to be possible, then A is to C is equal to B is to D. यानी जो alternate terms हैं उनका भी रेशियो बराबर होगा। अब जाहिर सी बात है, मान लो अगर A by B is equal to C by D हमको पता है, so अगर हम सिंपल एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आप A इधर लो, C को आप इधर लेके जाओ, सो A बाई C विल बी इक्वल टू B को आप वापस दूसरी तरफ लेके जाएंगे B अपॉन D, ठीक है। सो A इज टू C इज इक्वल टू B इज टू D, प्रोवाइडेड A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। अगर आप चाहो तो ये जो हमने यहाँ पे अज्यूम की थी वैल्यूज एज एन एक्सरसाइज, आप इनको भी सब्स्टिट्यूट करके यू कैन सी एंड वेरीफाई फॉर योर सेल्फ वेदर दिस होल्ड्स ट्रू और नॉट। वैसे इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, ठीक है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। अदरवाइज केस टू केस बेसिस पे जो चीज़ें चेंज होती हैं दे आर नॉट प्रॉपर्टीज। सो नाउ दैट वी हैव कवर्ड दीज टू इन डिटेल, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, व्हाट डज इट टेल अस? If A by B is equal to C by D, obviously that is the case for any proportion to exist, then A plus B is to B will always be equal to C plus D is to D, and this will always and always hold true. अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने अमित और बॉबी के थ्रू समझा था, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड लेट्स सी वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। तो अमित एंड बॉबी, इनकी रिस्पेक्टिव इनकम्स हमने आई ए और आई बी एज्यूम की थी। आई ए वॉज इक्वल टू ₹10,000, IB was equal to ₹50,000 और इनकी जो एक्सपेंडिचर्स थे वो हमने assume किए थे 5,000 and ₹25,000 respectively. Alright, now we already know that the ratio of income and expenditures of both of these are equal to each other. ठीक है, तो हमारी जो essential condition है was already established है। अब let's see after putting the values whether this property is true or not. So we know the values of IA, EA, IB and EB. अब इनको हम substitute करेंगे and let's see if LHS comes out to be equal to RHS or not. तो LHS क्या है हमारा? A plus B upon B, right? So this becomes IA plus EA upon EA, right? So IA कितना है आपका 10,000, EA की वैल्यू कितनी है 5,000 अपॉन 5,000, this will come out to be 15,000 upon 5,000. You cancel it out, this is equal to 3. Now let's check on the RHS.
वो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, C प्लस D अपॉन D। C क्या है हमारा, इनकम ऑफ बॉबी, सो IB प्लस D क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी। Now what is this? Income of Bobby is 50,000 plus expenditure of Bobby is 25,000 upon 25,000. This is 75,000 divided by 25,000. It cancels out, leaving 3. So we see LHS is equal to RHS. मतलब A plus B is to B will be equal to C plus D is to D, provided A is to B is equal to C is to D. So this is what componendo is about. Now let's look at the next property. Next is, if A by B is equal to D, then A minus B upon B is equal to C minus D upon D. यहाँ पे थोड़ा सा overwrite हो गया, so might not be clear. I'll write it for you. Dividendo tells us that A minus B upon B is equal to C minus D upon D if and only if A upon B is equal to C upon D. Now using the same set of values from the example here, we'll try and see whether it is true or not. हमको values पता है already. अब LHS left hand side में क्या है हमारे पास, A minus B upon B, right? So this is income of A minus expenditure of A upon expenditure of A. A here being related to Amit. Confuse नहीं होना है. अब इनकम ऑफ ए कितनी है हमारे पास, 10,000 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000. सो दिस विल गिव अस 5,000 अपॉन 5,000. दिस इज इक्वल टू 1. नाउ लेट्स सी ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी हैव. राइट हैंड साइड में हमारे पास है C माइनस D अपॉन D, राइट. C इज इनकम ऑफ बॉबी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी अगेन डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी. इनकम ऑफ बॉबी कितनी लेके चल रहे थे हम, 50,000 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 25,000 अपॉन 25,000. व्हाट डज दिस गिव अस, 50,000 माइनस 25,000 हो गया अपना 25,000 अपॉन 25,000. अगेन कैंसल्स आउट, इक्वल टू 1. सो LHS is equal to RHS. So this condition holds true. So this is what dividendo tells us. What does it say? Dividendo says that A minus B upon B will always be equal to C minus D upon D, provided A by B is equal to C by D. This is the essential condition for proportions to be possible and all of these properties to be possible. Alright, now let's see what do we have next. Now let's look at the next property, that is componendo and dividendo. Now please trust me when I say that this is the most important property. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी questions में, and you need to by heart this if you want to solve these questions. You know, like basically questions related to this topic. So componendo and dividendo क्या बताता है हमें? That if A by B is equal to C by D, done, essential condition fulfilled for proportions. Then what has happened? A plus B upon A minus B is always and always equal to C plus D upon C minus D. This is what C and D tells us. कि अगर दो ratios हैं और वो equal हैं, fulfilling the criteria for a proportion to be possible in the first place, then A plus B upon A minus B will always and always be equal to C plus D upon C minus D. ये आपको याद रखना है और ये सबसे important चीज़ है. In fact, out of these 5 ratios, this is mostly used when you solve a question. Now, जो हमने एग्जाम्पल पीछे लिया था उसी के थ्रू हम इसको देखते हैं सही है कि नहीं. टेस्टिंग भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगा आप लोगों को. तो वहाँ पे हमने 4 चीज़ें कंसिडर की थी, उनकी वैल्यूज अज्यूम की थी. इनकम ऑफ अमित विच वॉज 10,000, राइट. एक्सपेंडिचर ऑफ अमित विच वॉज 5,000. देन वी हैड assumed इनकम ऑफ बॉबी विच इज़ 50,000 और हमने एक्सपेंडिचर बॉबी का कंसिडर किया था 25,000. अब इन अज्यूम्ड वैल्यूज के बेसिस पे हमें ये पता है कि इनकम ऑफ अमित इज टू अमित्स एक्सपेंडिचर्स. दिस रेशियो इज इक्वल टू इनकम ऑफ बॉबी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बॉबी. सो वी हैव 2 रेशियोज एंड दे आर बोथ इक्वल. तो एसेंशियल कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई. अब हम चेक करेंगे इन वैल्यूज़ को
यहाँ सब्स्टिट्यूट करके वेदर सी एंड डी अप्लाइज और नॉट, प्रोवाइडेड ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्लियर? तो सबसे पहले हम LHS को एनालाइज करते हैं। LHS में क्या है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए के बदले क्या आएगा? इनकम ऑफ अमित प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ अमित डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ अमित माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ अमित, राइट? तो इनकम ऑफ अमित कितना है? 10,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 5,000, ये हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, कैंसिल इट आउट 3, राइट? अब LHS देखते हैं। LHS है C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, तो यहाँ पे बॉबी वाली फिगर्स आएंगी, यानी 50,000 प्लस 25,000 जो उसका एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाय 50,000 माइनस 25,000, दिस इज 75K अपॉन 25K, cancel it out 3. So we know that LHS is equal to RHS, hence proved. यानी A by B अगर C by D के बराबर है, दो रेशियोज हैं जो आपस में इक्वल हैं, that implies that A plus B upon A minus B will always and always be equal to C plus D upon C minus D, and this property is componendo and dividendo. प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये सारे के सारे रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सी एंड डी इन पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। कन्वर्स ऑफ ऑल दीज रिलेशनशिप्स इज ऑल्सो ट्रू ऑलवेज। कन्वर्स मतलब क्या हुआ? अब देखिए, हम क्या अब तक कह रहे थे? इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। अगर ऐसा है तब जाके ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी, करेक्ट? तो इनमें से जैसे सी एंड डी डिस्कस कर रहे थे, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, एंड दैट इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, राइट? एज पर सी एंड डी, ठीक है? अब व्हाट डज दिस कंसेप्ट मीन हियर? कि इसका कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा भी हमेशा ट्रू होगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट इफ, अब यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन क्या बन जाएगी? इफ ए प्लस बी upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D, then it can be said that A by B is equal to C by D. बात समझ में आ रही है? पहले हम कह रहे थे अगर ये चीज़ है तब हम ये अप्लाई करके कह सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि उसका उल्टा, उसका कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, right? And always it is true. So if A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D, then this must be true, यानी then the two ratios must be equal. अब फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेंडो को ही ले लेते हैं। हमने उसमें क्या कहा था? इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इन्वर्टेंडो पॉसिबल है। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होगा? दैट बी बाई ए विल बी इक्वल टू डी बाई सी। नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल इन पर्टिकुलर इज टेलिंग अस हियर कि अगर ऐसा है कि बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, देन it can be said that A by B is also equal to C by D. The converse is always true. ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज मच एज पॉसिबल डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अगर नहीं आया है समझ में, प्लीज डोंट वरी, ठीक है? धीरे धीरे क्या है कि लेवल इंक्रीज होता जाता है, थिंग्स बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट। सो हैव पेशेंस, पॉज द वीडियो, गो बैक अ लिटिल एंड सी इट अगेन। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड टाइम में। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। If A by B is equal to C by D is equal to E by F and so on, then each of these ratios is individually equal to A plus, ये C नहीं होगा, नहीं ये C होगा, A plus C, ये C नहीं होगा, ये E होगा. So all of these ratios are individually equal to A plus C plus E and so on divided by B plus D plus F and so on. Clear? तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहे हैं लेट्स अज्यूम अ केस ऑफ 4 रेशियोज, ठीक है? वैसे तो चाहे कितने भी ऐसे रेशियोज हो सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेट्स कंसिडर अ केस ऑफ 4 रेशियोज। कौन से रेशियोज है वो? A by B, C by D, E by F एंड लेट्स से G by H। अब हमें ये पता है कि ये सारे आपस में इक्वल हैं। नाउ इफ this equality of ratios is true, then all of these ratios will also be equal to the sum of the alternate terms. मतलब A plus C plus E plus G, ये आपका न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा
B plus D plus F plus H. So A by B, if it is equal to C by D is equal to E by F is equal to G by H, then all of this is equal to the sum of A plus C plus E plus G divided by the sum of B plus D plus F plus H. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वाइट इंपॉर्टेंट. वैसे आसान भी है याद करना बट इंपॉर्टेंट भी है याद करना, तो इसलिए प्लीज़ डोंट मिस ऑन दिस. ऑलराइट, ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है. ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, ये बेसिकली इनका पर्पस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. कोई भी हमें रेशियो दिया होगा, कोई भी कंडीशन दी होगा. अब यूजुअली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, आपको एक चीज़ दी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल फॉर्म सम इक्वेशन, सम रिलेशनशिप. और अगर मान लो उसमें 2 वेरिएबल हैं तो you'll only be able to calculate the value of one variable by such equation, and then using these values which you have calculated here you will substitute back into another equation, और उसके बाद दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालते हो. दिस इज बेसिकली द अप्रोच इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो ये जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखी हैं, जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं, वो इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हैं. दे कैन बी कंसिडर्ड एज टूल्स, एज एम्युनिशन to solve and attack these questions. All right, so let's see what is the next tool and ammunition which we have. A very important tool, continued proportion का concept है. अब देखिए, अब तक हमने जो बात की थी वो बात की थी 4 टर्म्स की. यानी जब हम कहते थे 2 रेशियोज हैं तो दोनों रेशियोज के जो टर्म्स होते हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट थे. दे वर डिफरेंट compared to each other. They were never the same. So you had 4 terms, A, B, C, D, out of which 2 ratios निकलते थे, A by B and C by D, और वो equal होते थे. तब जो भी है वो proportion में होते थे और ये सारी properties apply करती थी. अब continued proportion में थोड़ा सा twist है. क्या twist है? इसमें 4 terms नहीं है. पहले में 4 terms होते थे, इसमें 4 terms नहीं है. इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 terms हैं, which are A, B and C. अब जब हम कहते हैं कि A, B and C are in continued proportion, what does it mean? That A is to B is equal to B is to C. तो ये जो B है आपका वो रिपीट हो रहा है. तो अगर हमने पहले भी देखा था हमने एक टर्म सीखा था एक्सट्रीम्स. सो A और C एक्सट्रीम्स हैं बट जो मीन है आपका वो सेम है. और अगर ये कंडीशन होती है that A by B is equal to B by C, then we say A, B, C are in continued proportion. Or when this is true, then C is known as the third proportional. ठीक है? क्यों थर्ड प्रोपोर्शनल है? क्योंकि 4 टर्म्स है ही नहीं आपके पास, टोटल 3 टर्म्स है और आखिरी टर्म C है. तो C is known as the third proportional and B is known as the mean proportional. ठीक है? क्लियर है? So this is slightly different. यूजुअली हम 4 टर्म्स के साथ डील करते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं A, B, C, और जब वो प्रोपोर्शन में होते हैं दे आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि B यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये दोनों मीन्स की जगह ले रहा है. तो दैट इज वाई B इज 1 known as mean proportional and second it is known as continued proportion because B is repeated here. Clear? So प्रोपोर्शन का पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट सब कवर हो गया. रेशियो का हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था, उसके एग्जांपल्स भी लगाए थे. अब हम डील करेंगे वेरिएशन के साथ. अच्छा, वन अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर वी प्रोसीड. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 3rd होगा एंड दैट विल बी कैटलॉग्ड अंडर प्रैक्टिस मॉड्यूल. तो उसमें कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. पूरे वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं किया है तो थर्ड लेक्चर मत देखना, समझ भी नहीं आएगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा अलग. मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर एंड देन यू गो ऑन टू द थर्ड लेक्चर बिकॉज दैट इज अ प्रैक्टिस मॉड्यूल. ये दोनों बेसिक मॉड्यूल है. बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करके क्या फायदा, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन विद द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन. 2 quantities A and B, 2 quantities हैं, ठीक है. They can be said to be in variation with respect to each other. तो ये quantities किसके respect में वेरी कर रही हैं? एक दूसरे के respect में, कोई तीसरा नहीं है involved. So there are 2 quantities and they vary with each other. When can we say that? When a change in one of the quantity causes a change in the other. यानी अगर एक quantity में हम change करते हैं कोई भी, that change will trigger the change in the other quantity. सिंपल है. 2 क्वांटिटीज हैं, एक में अगर आप कोई चेंजेस करते हो उसकी वजह से दूसरे में भी कोई चेंज होता है. बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे वेरी विद ईच अदर, देन वी कैन सिंपली से दैट दे आर इन वेरिएशन विथ ईच अदर. नाउ डिपेंडिंग ऑन
whether that variation is positive, यानी कि अगर एक क्वांटिटी में हमने कुछ इंक्रीज किया तो दूसरे में भी इंक्रीज हुआ, या फिर उसमें डिक्रीज हुआ, या फिर कोई और रिलेशन है. वेरिएशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन एंड जॉइंट वेरिएशन. ठीक है, अब हम इंडिविजुअली इन तीनों टाइप्स को एनालाइज करेंगे. So let's understand what is direct variation. Definition first. Any quantity, let's say A, ठीक है, is said to vary directly. Focus on the keywords. Vary directly with another quantity B, let's say. ठीक है, तो दो quantities हैं A and B. All right. Now we say that they are varying directly with each other. लेकिन कब कह सकते हैं? पहली बात तो वो dependent होंगे एक दूसरे पे. They need to be dependent on each other. And secondly, in such a way that if B is increased in a certain ratio, now this is very, very important. If B is increased in a certain ratio, A also increases in the same ratio. If B decreases in the certain ratio, A also decreases in the same ratio. तो दो चीज़ें हैं. पहला तो हो गया डिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे. इसका मतलब क्या है कि A अगर इंक्रीज होता है तो B भी इंक्रीज होता है, A अगर डिक्रीज होता है तो B भी डिक्रीज होता है, या फिर वाइस वर्सा. ठीक है, दैट प्रूव्स डिपेंडेंसी. नाउ व्हाट इज द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? दैट दिस वेरिएशन हैज टू बी in the same ratio. This is critical for them to be directly varying with each other. So A and B, not only they have to have a dependent relationship, so that if one increases, the other also increases. If one decreases, then the other also decreases. The ratio by which they increase or they decrease with respect to each other should always be same. ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है. मान लो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, या कोई और वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं एक्स एंड वाई. नाउ इफ एक्स इंक्रीजेज वाई ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड इफ एक्स डिक्रीजेज वाई ऑल्सो डिक्रीजेज. लेकिन दैट इंक्रीज और डिक्रीज इज नॉट इन द सेम रेशियो. अगर ऐसा है कि वो डिपेंडेंट हैं लेकिन जो उनकी इंक्रीज और डिक्रीज का रेशियो है दैट इज नॉट सेम, देन यू कांट से दैट दे आर डायरेक्टली वेरिंग विद ईच अदर. दैट्स अ वेरी वेरी फाइन पॉइंट. इसको ध्यान से समझते हैं. अब लेट्स यूज एन एग्जांपल. अब हमें पता है कि फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, अगर आपके फ्यूल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है, ये बात है. तो अगर मान लो फ्यूल प्राइसेस एक सर्टेन क्वांटिटी पे फिक्स्ड हैं, ठीक है, एंड फॉर दैट फ्यूल प्राइसेस द इन्फ्लेशन इज सेट एट अ सर्टेन पॉइंट. नाउ if the fuel prices increase, it will cause a change in the inflation. लेकिन is the ratio by which the fuel prices increase is same as the which by inflation increases? Not necessarily. Why do we say that? Because inflation will depend on a lot of other factors as well. It will not only depend on the fuel prices. ठीक है, तो ये जो सेम रेशियो वाली बात है ये एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर टू क्वांटिटीज. यू कैन कॉल देम Q and say P and Q in this case. So for two quantities to be varying directly with each other, first of all, they have to be dependent on each other in a way that if P increases, that causes an increase in Q as well. And secondly, the ratio by which this increase or decrease happens has to be the same. All right? Please don't get confused. It can be possible, like in this case, that these two quantities are, dependent on each other. If one increases, the other will also increase. If one changes, then it will also cause a change in the other in the same direction. But the ratio may not be the same always. And if that is not the case, then we can't really say that they are in direct variation. For direct variation, it is important that they increase or decrease in the same ratio. All right, understood? अगर नहीं समझ में आ रहा है, please pause right here and go through this again. It is quite important to understand. All right, so what do we have next? Constant of proportionality, which is denoted by K. तो हमने यहाँ पे देखा जब डायरेक्ट वेरिएशन में होती हैं दो क्वांटिटीज, तो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है किसी एक रेशियो में, then the other quantity also increases in the same ratio. And when such a thing happens, then we say that A is proportional to B.
this is how we write it. So if two quantities, say Q1 and Q2, they are directly varying with each other, they are in direct variation with each other, we say Q is in direct variation with Q2, and this is how we denote it. ये जो साइन होता है ये होता है वेरिएशन का साइन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. And when this happens, when Q1 is varying directly with Q2, this implies that Q1 by Q2 is equal to K. ठीक है, K कैसे आया? अब Q1 is equal to K into Q2 लिख सकते हैं हम from this, because we know one factor is involved and this factor is always and always constant. इसलिए हम इसको कहते हैं constant of proportionality. So when Q1 is directly proportional to Q2, we express it as this, and then we can also write it as Q1 is equal to K, which is the constant of proportionality, times Q2. So therefore Q1 by Q2 will always be equal to K, which will always be a constant value. So this ratio here will always be constant. और इसी के ऊपर हमारा next principle based है. When two quantities A and B vary directly with each other, then A by B is equal to K, or the ratio of two quantities is constant. Now, ये थोड़ा सा यहाँ पे overwritten हो गया, that's why probably it's not clear. I'll write it again. When two quantities A and B are directly varying with each other, इसका मतलब क्या हो गया? A is proportional to B, then we can say that A by B is equal to K. All right, and K here is obviously the constant of proportionality. ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, provided A and B are varying, which can be denoted with this sign here. Understood? Now, conversely, when the ratio of two quantities is constant, then they vary directly with each other. अब इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से बेसिकली समझ रहे हैं कि अगर हमें ये पता है कि A and B are in direct variation, then we can write them as A directly varying with B using this symbol here, alpha sign, which can be written as A is equal to K, which is a constant of proportionality, into B. इसको हम लिख सकते हैं A by B is equal to K. अब इस चीज़ को अगर आप दूसरी डायरेक्शन में चलाएं तो भी ये हमेशा ट्रू होगा. The converse of this is always true, which means that if A by B is a constant ratio, we can assume it to be key, which will imply that A is equal to K times B, which will imply that A is directly proportional to B. ठीक है, तो आप कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, चीज़ हमेशा सेम रहेगी. क्लियर है? ये थोड़ा सा मैसी हो गया है. अगर किसी को हल्का सा भी कन्फ्यूजन है तो दोस्तों प्लीज़ पीछे जाओ. डायरेक्ट वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा और कई इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में भी हेल्प करेगा. ठीक है, तो दो चीज़ें पकड़ के रखनी है अपने को. एक तो सेम रेशियो ये होना ज़रूरी है और दूसरा उनका डिपेंडेंट होना ज़रूरी है. अब कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें डिपेंडेंट तो होगा वो, बट सेम रेशियो अगर नहीं होगा देन दे कांट बी सेड टू बी डायरेक्टली वेरिंग, एज वी सॉ इन फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन. दिस टू आर डायरेक्टली वेरिंग, लेकिन सेम रेशियो में क्या वो हमेशा वेरी करेंगे? नो. सो दैट्स अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट ऑन डायरेक्ट वेरिएशन. इफ A वेरीज डायरेक्टली विथ B, ठीक है, if A varies directly with B such that there are two sets of values of the variables A and B. So यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर दो variables हैं हमारे पास A और B. Now both of them have two sets of values. A has A1 and A2 satisfying whatever be the condition in the case. B has B1 and B2 which satisfy that condition. तो A और B क्वांटिटीज की दो सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं, A1 A2 एंड B1 B2 रेस्पेक्टिवली, एंड द फैक्ट दैट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. अब ये चीज़ें दी हुई हैं हमें. अगर ऐसा है, इफ देयर इज अ कंडीशन लाइक दिस, देन वी कैन से दैट A1 by B1 is equal to A2 by B2, or A1 by A2 is equal to B1 by B2. So basically, if the condition is there such that A is directly proportional to B and A and B both have two sets of values satisfying the condition, then it can be said that A1 by P1 is equal to A2 by P2, or alternatively A1 by A2
is equal to B1 by B2. These two conditions will always be true provided A and B are varying with each other and there are two sets of values both for A and B quantity. Clear है? So direct variation के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली. Now moving on to inverse variation. अब inverse variation as the name suggests direct variation का उल्टा होगा. Let's see the definition to catch any finer points. Any quantity, let's say A, is said to vary inversely. Focus on the keyword here, vary inversely. As another quantity, let's assume B. If the two quantities are first of all dependent on each other, this is the first condition, such that if B is increased in a certain ratio, A gets decreased in the same ratio. This is the second condition, right? And conversely, obviously, vice versa भी true होगा. If B is decreased in a certain ratio, then A gets increased in the same ratio. तो डायरेक्ट वेरिएशन की तरह इसमें भी जो एक चीज़ कॉमन है हम कह सकते हैं दैट इज़ डिपेंडेंस. तो रिलेशनशिप जो होगा दो क्वांटिटीज़ में डिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे. ये बात तो क्लियर है. बट जो अलग है यहाँ पे वो ये है, डायरेक्ट वेरिएशन में अगर ए में कोई इंक्रीज होता था तो उसकी वजह से बी में इंक्रीज होता था. इनवर्स वेरिएशन के केस में बी में डिक्रीज होगा, उल्टा होगा. या फिर हम ये कह सकते हैं ए में अगर डिक्रीज होता है कोई तो दैट विल ट्रिगर अ इंक्रीज इन बी क्वांटिटी. ऑलराइट, तो डिपेंडेंस तो है लेकिन जो नेचर है वो उल्टा है. इंक्रीज इन वन लीड्स टू डिक्रीज इन अनदर and vice versa. Second, and which is the same essential condition, is that the ratio in which these quantities increase or decrease has to be the same. This can't change. This is essential. Clear? Let's understand this from an example. अब मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जहाँ पे 2, 5, 10 एक्स अमाउंट ऑफ वर्कर्स काम करते हैं. ऑलराइट, और ये काम उनको कंप्लीट करने में d नंबर ऑफ डेज लगते हैं. ऑलराइट, so let's say X is the number of workers here and D is the number of days taken to complete the construction of the entire building. Now, if you increase the number of workers here, what will it lead to? The kind of change will it lead to in the time taken to complete the building? It will decrease the overall time. है कि नहीं? अगर हम workers बढ़ा देंगे तो जो time है वो अपने आप कम हो जाएगा. This is typically an example of inverse variation, that increase in one quantity leads to decrease in the other quantity. And second condition which we know equally important is that the ratio should be the same of whatever it is, the increase or the decrease, whichever the case is. Alright, so now let's see the next point. Again, constant of proportionality. So whenever we have an inverse variation, we represent it as A is inversely related to B. Direct में हम क्या लिखते थे? A is directly related to B. यहाँ पे 1 by B हो जाएगा. So A is proportional to 1 by B. इसका अपने आप ही मतलब हो जाएगा कि A is basically inversely varying with B. Right? अब अगर हम A is proportional to 1 by B लिखते हैं तो इसका ये क्या मतलब हो जाएगा कि AB will be equal to K. K is again the constant of proportionality. Right? ये हमेशा एक constant रहेगा. This will not change. So two quantities which are inversely varying with each other, their product will always be a constant. You have to remember that. Now next, when two quantities A and B vary inversely with each other, the AB is always equal to a constant. यही चीज़ हमने अभी discuss भी की थी. The product of two quantities will always be a constant. Alright, let's move next. Converse of this is always going to be true. Converse क्या मतलब हुआ इसका? If the product of two quantities is always found to be a constant, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो quantities आपस में inversely vary कर रही हैं. What does this mean? अब एक तो तरीका है ये बोलने का कि A is inversely related to B और A is directly proportional to 1 by B. इसको हम लिख सकते हैं कि AB is equal to K and therefore AB की जो value है, product है, that will always be a constant product, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से डिनोट करते हैं. इस तरीके से हमने कान पकड़ लिया. दूसरा क्या तरीका पकड़ने का कान कि ए बी अगर के बराबर है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, और
B is inversely proportional to A। आप कुछ भी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया सारा इन्वर्स वेरिएशन की जो भी कहानी थी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। Let's see what do we have next on inverse variation. If A varies inversely with B such that two sets of values, focus here, two sets of values of the variable A and B, A1 corresponding to B1 and A2 corresponding to B2, then we can say that A1 into B1 is equal to A2 into B2 or A1 by A2 is equal to B2 by B1. तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं सच दैट उन दोनों के दो दो सेट्स ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। A1 and A2 exists for A and B1 and B2 exists for B. A1 corresponds to B1 and A2 corresponds for B2, meaning when A is equal to A1 then B will be equal to B1. When A will be equal to A2 then B will be equal to B2. ठीक है, इस चीज का ये मतलब है corresponding का। So when the conditions are such, provided that A is inversely proportional to B, then we can say that A1 times B1 is equal to A2 times B2। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें, A1 upon A2 will be equal to B1 upon B2। So this will be always true if one, A is inversely proportional to B, meaning A is inversely proportional to B or directly proportional to 1 by B, and secondly A and B have two sets of values corresponding to each other। ठीक है, if this is the case then A1 by A2 will always be equal to B1 by B2। अब joint variation समझते हैं। Joint variation is quite different from direct and indirect variation. It is slightly confusing as well, so please focus। Definition क्या कह रही है? If there are three quantities A, B and C, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो नोटिस करना चाहिए that is the presence of three quantities unlike direct and inverse variation. Let those quantities be A, B and C. These are the three variables which we have. Now what is the definition further telling us? A varies with B when C is constant and varies with C when B is constant. जब वो किसी एक वेरिएबल के साथ वेरी करता है तो जो तीसरा वेरिएबल है that becomes a constant basically. So A here is varying both with B as well as C, right? When it varies with B, then the third variable which is C that becomes constant. When it is varying with C, then the third variable which is B that becomes constant. And once we have all these three conditions fulfilled, we can say that A is said to vary jointly with B and C, जहाँ पे B और C दोनों वेरी कर रहे हैं। अब B और C दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं? See, A is a variable which is varying with the other two variables, लेकिन B और C आपस में वेरी नहीं कर रहे हैं। They vary with A only, and when they do, the other variable becomes a constant. So both of them, B and C, they are both varying but at different times. So when these three conditions are fulfilled, we can say that A is jointly varying with B and C both, and this is how we represent it. Clear है? एक बार ये पॉज करके फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है। It's quite simple to understand, लैंग्वेज थोड़ी सी confusing है। Now let us try and understand this from a practical example. Let us say there is a school. अब स्कूल है तो बच्चे भी होंगे। अब बच्चों के अलग अलग बस स्टॉप्स हैं जहाँ से वो स्कूल आते हैं। They use the school bus to come to the school. Now, there is a problem which the principal is facing. प्रिंसिपल को एक रूट निकालना है जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, ऑप्टिमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। तो उसको ऐसा रूट निकालना है जिससे सारे बच्चे वो पिक कर लें एट अ मिनिमम कॉस्ट। दिस इज द प्रॉब्लम। सो लेट द कॉस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल सी। दिस इज आवर फर्स्ट वेरिएबल। क्लियर? अब हर बस स्टॉप पे जो बच्चे हैं वो अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होंगे। लेट n रिप्रेजेंट द नंबर। कहीं पे n will be equal to 2 like in this case, कहीं पे it will be equal to 8 and so on and so forth. Here for example it will be equal to 4. So n is the other variable. Now the cost will also depend on the distance between the school and the bus stop. The distance will be the third variable. Let d be the third variable representing the distances between various bus stops and the school.
So now we have three variables. One is C, the second is N, and the third is D. So in this case, if you look closely, it is very similar to what we have in the definition here. That C is such a variable that varies with N when D is constant, right? And C is a variable that varies with D when N is constant. And this is how we can say that C is jointly varying with both N and D. And this is how we represent it. जब आप cost की बात करोगे, it will depend on the number of students. But at that time when you are discussing it, D will have to be put aside and kept as constant. When we'll deal with distance in terms of cost, then obviously C will be varying with distance. Lekin at that time again, the number of students at each and every bus stop station will have to be kept aside and treated as constant. So C, we can very easily say that it is in joint variation with both the number of students at each of the bus stops and the distance between the bus stop and the school. So this is a typical example of joint variation. Alright, I hope it is clear. अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे आप पॉज करके इसको वापस देख लो. It's a very simple example and one of the most efficient examples which can help you understand joint variation. Now next, what is it? Constant of proportionality, as was the case in direct and inverse variation. यहाँ पे भी k के साथ तो हमें डील करना ही है. k कहाँ से आएगा? When we say that a is jointly varying with b and c, we can write it as a is equal to small k times bc, wherein k is nothing but the constant of proportionality. Clear? So now we have covered all the concepts for ratio, proportion and variation. अब हम कुछ examples solve करेंगे so that जो भी अब तक आपने सीखा है that is fine tuned and that is thoroughly there in your brains. Alright, so let's move on with the first question. अब question क्या कह रहा है हमसे? The ratio of the monthly incomes of Rohit and Sonam is 4:3. ये पहली चीज दी है, ठीक है. The ratio of their monthly expenditures, उनके खर्चों का रेशियो दिया हुआ है 5:4. Now it is further given Rohit saves 1/4 of his monthly income. तो 100 रुपए कमाता है तो 25 रुपए बचा लेगा. Now we have to find the ratio of their monthly savings. तो हमसे जो पूछा गया है, what we have to find? We have to find the ratio of monthly savings. ठीक है, monthly savings. Let me write it for you. All right, और हमें दिया क्या क्या हुआ है? इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और ये फैक्ट दिया हुआ है कि रोहित अपनी इनकम का 1/4 बचा लेता है. क्लियर है? अब देखिए जो जो हमें दिया हुआ है हम उससे स्टार्ट करेंगे. आई विल डू इट नाइसली स्टेप बाय स्टेप ताकि सबको समझ में आए. अब मंथली इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है किसके लिए? रोहित के लिए. सो विल राइट रोहित हियर एंड सोनम हियर. ठीक है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा तरीका लंबा हो सकता है बट प्लीज बेयर विद मी क्योंकि कई लोग हैं जिनको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. सो मंथली इनकम फॉर रोहित एंड सोनम किस रेशियो में दिया हुआ है? 4:3. राइट. मंथली एक्सपेंडिचर, जो खर्चा कर रहे हैं वो लोग हर मंथ, वो उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:4. राइट. अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? मंथली सेविंग्स. ठीक है, ये हमें अननोन है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ऑलराइट. अब अगर रोहित और सोनम का मंथली इनकम का रेशियो 4:3 है, सो कैन वी से लेट द इनकम बी 4x एंड 3x. राइट. सिमिलरली एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 है तो हम अज्यूम कर लेते हैं रोहित के लिए 5y है उसका खर्चा और सोनम के लिए है 4y. ऑलराइट. नाउ बेसिस दीज टू इंफॉर्मेशन वी कैन से सेविंग कितनी होती है? सेविंग इज जितनी आपकी इनकम है उसमें से आपके खर्चों को माइनस कर दो, उतना पैसा ही तो बचा रहे हो आप. तो इस हिसाब से सेविंग हो जाएगी रोहित की 4x minus 5y एंड फॉर सोनम दिस विल बी 3x minus 4y. अब तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? इट्स क्वाइट सिंपल. रेशियोज हमें पता थे 4:3 मंथली इनकम के और 5:4 एक्सपेंडिचर के. सो अकॉर्डिंगली वी अज्यूम्ड कि रोहित की इनकम मान लेते हैं 4x और सोनम की इनकम मान लेते हैं 3x, ताकि इनका रेशियो आपस में निकालोगे आप तो 4:3 आएगा. राइट. सिमिलरली एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था. अकॉर्डिंगली वी अज्यूम्ड
that let the expenditure for Rohit be 5y and for Sonam be 4y. So basis this information we can say savings जो है रोहित की वो हो जाएंगी 4x minus 5y and for Sonam it will be 3x minus 4y. Clear? Now एक additional information हमें दी हुई है कि that रोहित saves 1/4 of his monthly income. ठीक है, अब यहां से हमें एक रोहित की सेविंग्स निकल के आई है x और y के टर्म्स में. सो 4x minus 5y ये हम कह सकते हैं इज 1/4 ऑफ रोहित्स इनकम. ठीक है, रोहित सेव्स 1/4 ऑफ हिज मंथली इनकम. यहां से सेविंग्स निकल के आई 4x minus 5y is equal to 1/4 of his monthly income, which we assume to be 4x. Right? Let's solve and try and simplify. See what we get. So 4x minus 5y will be equal to, ये cancel out हो जाएगा, x हो जाएगा. This implies that 3x is equal to 5y. Now this here is very important क्योंकि we have a relation now directly between x and y जिन variables पे basis पे हमने values assume की थी. Clear? So इसको आप ध्यान में रखो, side में रखो अभी for now. Let's see what else can we do. Now we know that the monthly saving for Sonam is 3x minus 4y. ठीक है, 3x minus 4y. Can we say that this is equal to 3x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम 5y. So this becomes equal to 5y minus 4y which gives us y. बात समझ में आ रही है? सोनम की सेविंग हमें पता है यहाँ से 3x minus 4y है. ये रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 3x हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. 3x के बदले हमने 5y डाला तो 5y minus 4y becomes y. So Sonam savings become equal to y. Clear? नाउ हमें रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? दोनों की सेविंग्स निकालनी है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन रोहित सेविंग्स राइट एंड सोनम सेविंग्स. दोनों की सेविंग्स का ही तो रेशियो निकालना था हमें, है कि नहीं? एवरीबडी आई होप इज फॉलोइंग, वरना पॉज करके एक बारी देख लो. अब रोहित सेविंग कितनी थी? 1/4 इंटू 4x. राइट, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. 4x कहाँ से आया? क्योंकि हमने इनकम मानी थी उसकी 4x बेस्ड ऑन दी रेशियोज. करेक्ट. एंड सोनम की सेविंग कितनी है? हमने अभी निकाला 3x minus 4y विच इज नथिंग बट इक्वल टू y. यहाँ से आया ये तो नीचे आ गया y आपका सिंपली. 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ x बाय y. नाउ वी नो फ्रॉम हियर दैट 3x इज इक्वल टू 5y. तो यहाँ से हम x बाय y की वैल्यू निकाल सकते हैं. x बाय y कितना हो जाएगा? 5/3. राइट. तो जो रोहित है और सोनम की सेविंग्स का रेशियो which is come out to be x by y is simply 5/3 using the relation which we have already established. So this is the answer to the question. This is the ratio of Rohit savings and Sonam saving. ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी. इसको एक बार ही आप चाहे सोल्यूशन देख लो, उसके बाद भी प्लीज ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन वंस बाय योरसेल्फ. ऑलराइट, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट डज द क्वेश्चन से. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू. अब क्या इक्वेशन दी हुई है हमें? 2x plus 5 divided by x plus 1 is equal to x plus 2 divided by x minus 1. तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है. तो सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है. ये जो दोनों रेशियोज दिए हुए हैं ऑन दी LHS एंड दी RHS, we'll simplify them and solve for x. So first step will be cross multiplying. So 2x plus 5 multiplied by x minus 1 is equal to x plus 2 into x plus 1. I will open the brackets and solve. This will become 2x square minus 2x plus 5x minus 5 is equal to x square plus x plus 2x plus 2. Clear? अब ये x square आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x square बचेगा. माइनस 2x प्लस 5x ये कितना हो जाएगा? प्लस 3x माइनस 5 and this will be equal to x plus 2x again 3x plus 2. अब 3x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? x square is equal to 7 which implies that x is equal to plus minus root 7.
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। x की दो वैल्यूज होंगी, क्या क्या, +√7 एंड -√7। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कंपेयर टू द लास्ट वन। चलिए अब अगला देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज ध्यान देना, कंसेप्चुअल है थोड़ा। इफ a varies directly with b, so what is given to us? A is varying directly with b. Then we have to find out whether a cube plus b cube and a cube minus b cube are directly varying or not. ठीक है, अब देखिए हमें पता क्या लगाना है कि a cube plus b cube is directly varying with a cube minus b cube or not. ठीक है, so this is given to us. A is directly proportional to b. We have to find out whether a cube plus b cube is directly proportional to a cube minus b cube or not. अब इस चीज को प्रूव करने के लिए एक चीज समझते हैं कि हमें एक्चुअली क्या प्रूव करना होगा, राइट? तो अब दोनों डायरेक्टली वेरिंग है, इसका मतलब क्या है? हम ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू k इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब, वेर इन k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भूल तो नहीं गए? तो अब a क्यूब माइनस b क्यूब को आप इस तरफ लेके आओ, so this will give you a cube plus b cube divided by a cube minus b cube, which is equal to k, and k is a constant, right? So basically if we can prove that a cube plus b cube and a cube minus b cube ये ratio एक constant है, then ये automatically prove हो जाता है that a cube plus b cube and a cube minus b cube are directly varying. Clear? अब हमें दिया क्या हुआ है? a is proportional to b, directly proportional to b, so we can write is that a is equal to k, a constant of proportionality, into b, right? अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब इंटू b क्यूब। क्लियर? अब उसको LHS में लेके आओ, a क्यूब माइनस k क्यूब b क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम LHS में प्लस b क्यूब और माइनस b क्यूब दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब, ताकि एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो and we are able to reach at this expression. Basically a क्यूब प्लस b क्यूब की हम वैल्यू निकालेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे a क्यूब, अब देखो इसको हम फर्दर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दो तरीके के यहाँ पे आगे सिंप्लीफिकेशंस होंगे। पहला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब को आप इस तरफ रखो और बाकी चीज़ों को RHS में ले जाओ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू b क्यूब प्लस k क्यूब b क्यूब। अब b क्यूब इधर कॉमन है, टेक दैट आउट, so a cube plus b cube will give you b cube into k cube plus 1. So this is the first relation. न्यूमरेटर आ गया हमारा यहाँ से। अब डिनोमिनेटर में क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब, तो अब इसको हम थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। हमारे पास क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस k क्यूब b क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट? सो अब इस बारी हमें a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है, तो इसको हम इस तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। दिस विल गिव अस व्हाट? k क्यूब p क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब इज अगेन कॉमन, सो a क्यूब माइनस b क्यूब विल बी इक्वल टू b क्यूब कॉमन ले लो, k क्यूब माइनस 1. दिस इज द सेकंड रिलेशन व्हिच वी हैव. सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that a क्यूब प्लस b क्यूब divided by a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to p cube brackets में k cube plus 1 divided by p cube brackets में k cube minus 1, right? We can say that. simple substitution किया है हमने। अब यहाँ पे b cube आपका cancel out हो जाएगा, what will be left is k cube plus 1 upon k cube minus 1. अब 1 हमें पता है is already a constant and k is also a constant, so this value comes out to be a constant. ठीक है, और अगर ये a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब कांस्टेंट है, देन वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब is directly varying with a cube minus b cube. So we have found out, hence proved. Now let's see what's the next question. For a particular cone, एक cone है, it is found that the area of its base and height is in direct variation, ठीक है, with its volume. तो जो volume है that is directly varying with the area and the height. Clear है यहाँ पे? Now, further the base of the area of the cone is known to be a square centimeter while its height is 10 centimeter. The volume of the cone is 270 cubic centimeter. Now, based on this information, find out the volume of another cone whose base area is 2a square centimeter and height is 30 centimeter.
अब देखने में क्वेश्चन लंबा चौड़ा है बट डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात यहाँ पे हो रही है दो कोन्स की, क्लियर है? ठीक है, पहला कोण मान लेते हैं C1, दूसरा कोण मान लेते हैं C2। अब C1 के लिए जो वॉल्यूम है लेट इट बी V1, द एरिया ऑफ द बेस लेट इट बी A1 एंड द हाइट बी H1। सिमिलरली फॉर कोण C2 वॉल्यूम मान लो V2, एरिया ऑफ द बेस A2 और हाइट मान लो H2। अब क्वेश्चन में ये V1 की वैल्यू हमें पता है 270 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया पता है कितना है A सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट पता है हमें 10 सेंटीमीटर्स। अब यूनिट सबकी सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। V2 हमें पता लगाना है, A2 हमें दिया हुआ है 2A सेंटीमीटर स्क्वायर एंड H2 जो हाइट है उसकी दूसरे कोण की दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। दिस मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि हमने वेरिएशन को इक्वल टू से प्लेस किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा इनटू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब पहले कोण के लिए फॉर C1 we can say that V1 is equal to K into A1 into H1, right? Similarly, for the second cone we can say V2 is equal to K area of the base and the corresponding height, right? अब V1 की वैल्यू डाल दो 270 is equal to K into 10 into H1 कितना है, H10 है, एरिया ऑफ द बेस कितना है, पहले लिखो बाद में लिखो हार्डली मैटर्स, एरिया है अपना A। अब V2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, K इंटू A2 पता है हमें, A2 इज 2A और हाइट कितनी है इस कोण की 30। अब सीधा हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, V2 की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे 270 बाई V2 इज इक्वल टू K इंटू 10 इंटू A डिवाइडेड बाई K इंटू 2A इंटू 30, राइट? सिंपल वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन किया है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया है ताकि V2 की वैल्यू निकल के आ जाए जो हमें निकालना है, राइट? वॉल्यूम ही पूछा हुआ है हमसे। तो अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, K कैंसिल आउट हो जाएगा, A कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? सो विल बी लेफ्ट विथ 270 बाई V2 इज इक्वल टू, ऊपर रह जाएगा 10A और नीचे हो जाएगा, A तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर रह गया 10, नीचे हो जाएगा 2 into 30, right? So this is equal to 1 by 6. So what we have here is 270 divided by V2 is equal to 1 by 6. So therefore volume of the second cone that is V2 will be equal to 270 into 6. इसको आप सॉल्व कर लो, 6 7 42, 2 4 6 2 12 और 4 16, तो 1620 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है? एक बारी मैं फिर से कहूंगा, प्लीज अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। एक बारी आप अटेम्प्ट करो सोल्यूशन देखने के पहले, उसके बाद आपने एक बारी सोल्यूशन देख भी लिया है, उसके बाद भी प्लीज ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ऑलराइट? Now this is a very interesting question, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कंपेयर टू द वंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीर स्पेंड्स ऑन हिज कार इन अ मैनर सच दैट हिज कार एक्सपेंसेस आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरिएबल। क्लियर है? तो कुछ खर्चा कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल है। तो वेरिएबल पार्ट डिपेंड्स ऑन द माइलेज ऑफ द कार इन अ मंथ, ठीक है? तो वेरिएबल कंपोनेंट डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस पे। तो खर्चे के दो कंपोनेंट्स हैं, एक फिक्स्ड है एक वेरिएबल है, और वेरिएबल डिपेंड कर रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कार। नाउ ऑन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स द टोटल एक्सपेंसेस आर ₹3500। अब इस 3500 में क्या होगा, एक फिक्स्ड कंपोनेंट होगा एक वेरिएबल कंपोनेंट होगा। वेयर एज व्हेन ही ट्रैवल्स डबल द डिस्टेंस, मतलब 100 का वो 200 किलोमीटर जब ट्रैवल करता है, द एक्सपेंस इंक्रीज बाय 500। तो पहले 3500 था, अब कितना हो जाएगा 4000। अब हमें बताना है कैलकुलेट हिज टोटल एक्सपेंसेस इफ ही ट्रैवल्स 250 किलोमीटर्स इन अ सिंगल मंथ। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन एंड आई एडवाइज अगेन, एक बार खुद अटेम्प्ट कर लो प्लीज, ठीक है? अब देखो हमें पता है कि टोटल जो एक्सपेंस है वो कॉम्बिनेशन है एक फिक्स्ड कंपोनेंट का और एक वेरिएबल कंपोनेंट का, ठीक है? वेरिएबल कैसे चेंज कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कार उस पर डिपेंड करेगा वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, ठीक है? अब टोटल को हम डिनोट करेंगे T से, फिक्स्ड कंपोनेंट को F से, वेरिएबल कंपोनेंट को V से, एंड लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बी D। नाउ वी नो दैट V इज प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू D वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इतना क्लियर है? लेट दिस इक्वेशन बी 1।
नाउ जब गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो मान लो टोटल एक्सपेंस T100 से डिनोट करते हैं हम, कितना हो जाएगा F प्लस वेरिएबल कंपोनेंट इज के डी, तो डी यहाँ पे पुट करो, डी कितना है 100 क्योंकि गाड़ी 100 चली है इंटू के, दिस इज अंडरस्टूड। टोटल जो एक्सपेंस है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्लस वेरिएबल वी नो इज इक्वल टू के डी वे डी इज द डिस्टेंस। सो 100 किलोमीटर चलिए तो डी की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। सो T100 इज इक्वल टू F प्लस 100 के, क्लियर। अब T100 की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, 3500 खर्चा आया था। So this is 3500 is equal to the fixed component plus 100k. Let this be equation 2. अब similarly जब गाड़ी 200 चलती है तो उसमें भी यही चीज होगी F plus 200k, राइट। तो T200 हमें पता है कितना है, 4500 खर्चा बढ़ जाता है, is equal to F plus 200k। ये मान लो थर्ड इक्वेशन है। अब थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन आप माइनस करो, क्या मिलेगा आपको, LHS में बच जाएगा 4000 माइनस 3500, 500 is equal to F will cancel out, 200 minus 100k will be 100k. This will give you k is equal to 5. k की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज इक्वल टू 5। अब k को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f विच इज द फिक्स्ड कंपोनेंट दैट विल रिमेन सेम नो मैटर गाड़ी कितना ट्रैवल करती है। सो 3500 इज इक्वल टू f प्लस k की वैल्यू 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। सो f इज इक्वल टू 3000। तो हमारे पास वैल्यू आ गई फिक्स्ड कंपोनेंट की और k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंसेस इफ ही ट्रैवल्स 250 किलोमीटर्स, तो यानी T250 निकालना है। अब T250 में एक कंपोनेंट फिक्स्ड होगा, एक कंपोनेंट वेरिएबल होगा। वेरिएबल को क्या लिखेंगे हम, स्मॉल k इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 250, तो दिस विल बी इक्वल टू f की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 3000, सो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 3000 प्लस k की वैल्यू कितनी है 5, कहाँ से आया इधर से, 5 इंटू 250, क्लियर। So this is 3000 plus 250 times 5 is 1250, तो जो टोटल एक्सपेंस वो आएगा आपका कितना आएगा 4250। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा सोल्यूशन देख के, बट प्लीज practice this question, please attempt this question even after you've seen the solution, all right। Now let's see the next question, quite interesting। The number of questions Sumit and Ashu, sorry, the number of questions nahi hai, the number of coins, the number of coins Sumit and Ashu possess are in the ratio 10:11. Which of the following cannot be the number of coins both of them possess together? ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में कि सुमित और आशु के पास कुछ सिक्के हैं, उनका रेशियो जो है दैट इज 10:11। नाउ वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैनॉट बी द नंबर ऑफ कॉइन्स बोथ ऑफ देम पोजेस टुगेदर, ठीक है। तो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है यहाँ पे। अब इसमें जो यूजुअल प्रोसेस होता है, इक्वेशन बनाया ये सब किया, वैसे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसमें हम लॉजिकल एनालिटिकल बेस्ड सोल्यूशन निकालेंगे, तो इंटरेस्टिंग सोल्यूशन होगा, प्लीज पे अटेंशन। अब हमें पता है रेशियो है 10:11, तो लेट सुमित पोजेस 10x कॉइन्स एंड लेट आशु पोजेस 11x कॉइन्स। रेशियो निकल के आएगा 10:11, कंडीशन फुलफिल्ड। तो हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि सुमित के पास जो कॉइन्स हैं उनका नंबर है टोटल 10x और आशु के पास जो टोटल कॉइन्स हैं वो है 11x। अगर ऐसा है तो सुमित और आशु के पास कंबाइंड टोटल कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 10x प्लस 11x विच इज नथिंग बट 21x। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब अगर देखो टोटल कॉइन्स का ये नंबर है which is a product of 21 and x, then that total must be divisible by 21। ये बात समझ में आ रही है। कोई टोटल है जिसके दो फैक्टर्स हैं, यहां से हमें पता चल रहा है, ए फैक्टर है 21 और दूसरा है x, इनका ही तो प्रोडक्ट टोटल आएगा, तो वो टोटल 21 से जरूर डिविजिबल होगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे चेक करना है कौन से वो ऑप्शंस हैं जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर इनमें से एक भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो वो टोटल नहीं पॉसिबल है। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखो 210 तो सीधा सीधा 21 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता ना। 189 3 से तो डिविजल है ही, 7 से डिविजल है, बिल्कुल है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दिस ऑल्सो कांट बी द टोटल ऑफ द कॉइन्स पोजेस्ड बाय आशु एंड सुमित। 231 ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 से तो हो ही रहा है, 7 3 जा 21, 7 ये भी हो रहा है, तो दिस ऑल्सो कांट बी द आंसर। नाउ 153 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7,
it is divisible by 3, therefore it is not divisible by 21, therefore this cannot be the total and this will be the answer to this question. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फिर से एक बारी बताता हूँ क्योंकि ट्रिकी सोल्यूशन है थोड़ा। अब रेशियो में पता था 10:11 है, हमने अज्यूम कर लिया कि कॉइन्स मान लो 10x और 11x हैं। अब अगर कॉइन्स 10x और 11x हैं तो टोटल के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 21x। अब 21x अगर कोई टोटल नंबर है तो उसके दो फैक्टर्स हैं, एक 21 और एक x, तो उस नंबर का 21 से डिविजिबल होना ऑब्वियसली ज़रूरी है। अब जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमने फटाफट चेक कर लिया कि कौन से ऑप्शंस 21 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो बी सी डी ऑप्शंस हैं ये तो डिवाइड हो रहे हैं, तो दे आर ऑब्वियसली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। 153 नहीं हो रहा, तो 153 इज क्लियरली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वंस अगेन आफ्टर यू सी द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is found to be 1/4 of B, if A is found to be 1/4 of B, who is further half of what C is? ये whose नहीं होगा, ये who होगा। Who is further half of what C is? Then what will be the value of A is to C? आपके ऑप्शंस हैं 4:1, 1:4, 1:8 और 8:1। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कर भी लेना चाहिए अपने आप से। सो A is equal to 1/4B, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है आपको। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, B is half of what C is. This is the second equation. अब हमें निकालना क्या है, A is to C। तो A और B का एक रिलेशन है, B और C का एक रिलेशन है। अब इस चीज़ को आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो A is equal to 1/4 ऑफ B की वैल्यू क्या है 1/2 C, राइट। सो दिस विल बी A is equal to C/8। अब A is to C निकालना है तो C इधर लेके जाओ, so A/C will be equal to 1/8. So A is to C is equal to 1:8. This is the answer to the question. So the correct option is option C. So that's it. This is all what we have for now. In the next video, we will be taking up questions. That lecture will be a part of the practice module. So I'm sure आप सबको बहुत मजा आएगा. I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. Please let us know your feedback in the comments. Thank you so much for your time and have a good day ahead.